دوستو آپ کو خوش آمدید کہیں گے اپنے اس ریگولر کے ویلاگ میں، اور میں محمد نعیم، آپ دیکھ رہے ہیں ظفر سیکیورٹیز۔ آخری کاروباری دن تھا، بازار میں ایک بار پھر سے جو تیزی کا سلسلہ تھا وہ آگے بڑھا۔ 747 پوائنٹس کا اضافہ، اور بازار میں اب نئے چہرے دیکھنے کو ملے۔ نئے کھلاڑی بھی بازار میں شامل ہوئے اس ریس میں۔ وہ کھلاڑی جو کہ بڑے کھلاڑی تھے، انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور فیول کیا اس ریلی کو۔ کہاں رکے گی 100x کی بات کریں گے، اپ سائڈ، ڈاؤن سائڈ، اور شیئرز کی بات کریں گے، جبکہ خبروں پر بھی ہم ایک نظر ڈالیں گے۔ بازار میں جو لیڈرشپ رول ہے وہ شفٹ ہوتا ہوا دیکھا جا رہا ہے ایز کمپیئر ٹو پریویس ریلی۔ اب جو ریلی ہے وہ یکسر نئے اسٹاکس اور نئے کھلاڑی ہوں گے، ان پر ہمارا آج کا فوکس رہے گا۔ خبروں میں اگر ہم دیکھیں تو نیگیٹو نیوز کا جو فلو ہے اکنامک فرنٹ پر، وہ بدستور جاری ہے، جہاں پر گورنمنٹ فیل ہوئی ہے۔ پاکستان میں جو ٹیکس کی بیس ہے اس کو بڑھانے میں، یعنی کہ آپ دیکھیں انکم ٹیکس فائلر جو ہے وہ شرنک ہوا 35% کا۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا جو بڑا ایک موٹو تھا کہ ہم جو بیس ہے ٹیکس فائلرز کی اس کو بڑا کریں گے، نئے ٹیکس فائلرز کو اس میں شامل کیا جائے گا انکم ٹیکس فائلر کی لسٹ پر، لیکن وہ ناکام رہا۔ 35% سے گراوٹ دیکھی گئی، جبکہ ریٹیلرز کو بھی ٹیکس نیٹ میں لانے کا پروگرام تھا FBR کا، وہ بھی ناکام رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ ناکامی آگے بڑھی مزید، اور FBR بالکل ناکام رہا، جہاں پر اس نے اناؤنس کیا، نوٹس بھی کیا کہ وہ کنیکشن یوٹیلٹی اور موبائل کنیکشن کو کاٹ دے گا نان فائلر کے لیے اگر وہ فائل نہیں کریں گے اپنے ریٹرنز کو، بٹ وہ فیل ہوا۔ نمبر 3، ریونیو کلیکشن میں شارٹ فال دیکھی گئی لگاتار دوسرے مہینے میں، فیبری میں بھی 35 ارب روپے سے زائد کی شارٹ فال ہے، جو ٹارگٹ ہے وہ میٹ نہیں ہو پایا۔ دوسرے نمبر پر اینگرو فرٹیلائزر نے بھی اپنے یوریا پرائسز کے ریٹس کو بڑھا دیا، 882 روپے پر بیگ کے حساب سے اب نیا ریٹ آ گیا یوریا کا، اینگرو فرٹیلائزر کا 4649 روپے کا۔ اس سے پہلے FFC اور فوجی فرٹیلائزر بن قاسم بھی یوریا پرائسز کو بڑھا چکے ہیں پچھلے ہفتے میں ہی۔ جہاں پر کنزیومر پرائس انڈیکس کی بات ہے تو وہ جو رینج ایکسپیکٹڈ تھی 23 سے 24% کی، اس کے درمیان میں دیکھا گیا۔ فیبری کا جو فگر رہا 23.1% کا ریٹ رہا CPI انفلیشن کا۔ اب جو ایوریج ہے CPI انفلیشن کی جولائی ٹو فیب 8 مہینوں کا فگر وہ تقریباً 28% ہے، جبکہ پچھلے سال اسی پیریڈ کا جو فگر رہا تھا کنزیومر پرائس انڈیکس کا وہ تقریباً 26.17% کا تھا۔ تو آن ایوریج بیسس انفلیشن میں اضافہ ہے، جبکہ جنوری کے مقابلے میں فروری کا جو فگر ہے، جنوری میں ہم نے دیکھا 28.34% کا ریڈنگ تھی CPI کنزیومر انڈیکس کی، لیکن وہ کم ہوئی ہے۔ بازار میں نئے چہرے اور نئے چہروں نے لیڈ کیا بازار کو، جہاں پر کل ہم نے دیکھا OGDC اور کچھ دوسرے سٹاکس میں تیزی تھی، آج وہ یکسر بدل گئے۔ اینگرو کارپوریشن آج لیڈ کرتے ہوئے دیکھا گیا، بریک آؤٹ بھی دیکھا گیا 332 روپے کا ایک بار پھر سے، اور تگڑا بریک آؤٹ تھا، بہت طاقتور۔ 347 روپے 74 پیسے کی سطح پر پہنچا دیا آج کے دن۔ اینگرو کارپوریشن نے مجموعی طور پر 164 پوائنٹس کو ایڈ کیا اس نے کل آج 747 پوائنٹس کی ریلی میں، اور یہ جو ہائی آج کا کلوزنگ ہے وہ اینگرو کارپوریشن کی جنوری 2020 کے بعد سے ایک بڑی کلوزنگ ہے۔ اپ سائڈ کیا پوٹینشیل رہے گا اس پر بات کریں گے۔ نئے جو اس وقت بازار میں چہرے ہیں اور بازار کو جو لیڈ کرتا ہوا ہم دیکھ سکتے ہیں آنے والے کچھ ٹائم پر ان فیوچر، وہ ڈیفینیٹلی اینگرو گروپ ہے۔
आपने देखा एंग्रो फर्टिलाइज़र इस वक्त अनचार्टर्ड टेरिटरी में है। आज अगरचे उसमें प्रॉफिट टेकिंग देखी गई है, बट उसको रिप्लेस किया एंग्रो कॉरपोरेशन ने आज 7.5% की अपर लिमिट को हिट करते हुए। एंग्रो ग्रुप काफ़ी लाइमलाइट में था पिछले साल जून में, जब उनके जो वाइस चेयरमैन थे उनका इंतकाल हो गया, जो कि बड़ा अनफॉर्चुनेट था इस ग्रुप के लिए। और उस डेवलपमेंट के बाद बहुत सारा रिसर्च हुआ, कंक्लूजन हुआ कि क्या एक बहुत बड़ा जो ग्रुप है पाकिस्तान की पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का, उसका फ्यूचर, उस पर बहुत सारे सवालिया निशान भी उठे मैनेजमेंट के हवाले से कि हु विल लीड नाउ एंग्रो ग्रुप टू। उस हवाले से हमारी जो इस वक्त एनालिसिस है वो तकरीबन ये है, जैसा कि हम परफॉर्मेंस देखी एंग्रो फर्टिलाइज़र की तकरीबन 150 रुपए को हिट करते रुका है। ये तमाम जो स्टॉक्स हैं इस सेक्टर से, जो कि सेक्टर या ग्रुप से, एंग्रो ग्रुप से ख़ास तौर पर, उनमें हम सिमिलर काइंड ऑफ बिहेवियर देखने को मिल सकता है इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर। एंग्रो फर्टिलाइज़र के बाद एंग्रो कॉरपोरेशन, दाऊद हरकुलिस, एंग्रो पॉलीमर, ये वो काबिल ज़िक्र स्टॉक्स हैं जो कि हम देखते हैं कि इनमें कुछ नया एक लीडिंग रोल नज़र आ रहा है। और उसकी जो वजूहात हैं टेक्निकली वो ये हैं कि ये तमाम जो स्टॉक्स हैं वो उनमें हैविली इन्वेस्टेड हैं हमारे फंड्स, इंस्टीट्यूशंस, म्यूचुअल फंड्स, ब्रोकरेज हाउसेस, कंपनीज, अदर ऑर्गेनाइजेशंस और फॉरेन फंड भी। चूँकि ये तमाम जो कंपनीज़ हैं ये रेगुलर डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हैं, कंसिस्टेंट पे आउट है इनका, और उस हवाले से ये जो बिहेवियर है कंपनीज़ का कंसिस्टेंट पे आउट का, ये कंपेल करता है इन तमाम स्टेक होल्डर्स को कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर रखें, उनमें इन्वेस्ट करें। तो हाईली इन्वेस्टेड हैं ये तमाम स्टेक होल्डर जो अभी मैंने बयान किए। इस चेंजिंग इन्वायरमेंट में जहाँ पर कंपनी की मैनेजमेंट पर अब गोइंग फॉरवर्ड 10, 15, 20 साल एक क्वेश्चन मार्क है, उस हवाले से इन तमाम स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि एक बड़ी रैली की तवक्कुआत है। चूँकि कस्टडी में है तमाम उन स्टेक होल्डर्स के, अब कस्टडी में तो हैं लेकिन अब उनका जो रिव्यू है इस अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट के बाद वो एग्ज़िट का है, डेफिनेटली एग्ज़िट का है। और एग्ज़िट जब तक पॉसिबल नहीं है उन तमाम बड़े स्टेक होल्डर्स के लिए, जब तक कि उन स्टॉक्स में एक बड़ा रैली हो, तेज़ी हो और अनप्रेसिडेंटेड तेज़ी हो, नया हाई लगे, तब वो लिक्विडेट करें। तो उस हवाले से एंग्रो कॉरपोरेशन अब लीड करता हुआ देखा जा रहा है। और हमारी जो प्रोजेक्शंस हैं, चूँकि अभी उसका जो हाई है वो पिछला हाई अभी काफ़ी उससे नीचे है, एवर हाई नहीं है रेट, अनचार्टर्ड टेरिटरी नहीं है, बट अगला जो पॉसिबल और नियर टारगेट है आज की ब्रेकआउट के बाद वो 370, 372 रुपये की सतह, जबकि उससे मिलता जुलता 400 रुपये के आसपास, जबकि इवन हम देख सकते हैं स्टॉक इससे ऊपर भी ट्रेड कर सकता है। और ये वो बुनियादी फंडामेंटल हैं जो अभी हम बयान कर रहे थे, एग्जिस्टेंस है इन तमाम शेयर्स में। तमाम जो बाज़ार के बड़े स्टेक होल्डर हैं उनकी एग्ज़िट लेना है, और एग्ज़िट तभी पॉसिबल है जब स्टॉक में एक बड़ा रैली हो, बड़ा बूस्ट अप हो, तब वो एग्ज़िट ले सकते हैं, ना कि यहाँ पर जहाँ पर स्टॉक मज़ीद गिर जाने की तवक्कुआत हैं एक बड़ी लिक्विडेशन के नतीजे में। मारी पेट्रोलियम ने भी लीड किया आज और बहुत करीब पहुंचा अपना जो उसका प्रीसीडिंग हाई है 2580 रुपये का। मीज़ान बैंक, दाऊद हरकुलिस, बैंक अल हबीब, मिलर ट्रैक्टर्स, पाकिस्तान सर्विसेज लिमिटेड, PSO, MCB बैंक, FFC, ये तमाम वो स्टॉक्स थे जिन्होंने आज मेजर कंट्रीब्यूट किया। 630 पॉइंट्स की टोटल इनकी कंट्रीब्यूशन थी,
47 पॉइंट्स टोटल 100x का जो उछाल था आज के दिन के लिए। बैंक्स में देखें तो नया हाई रहा मीज़ान बैंक में, अनचार्टर्ड टेरिटरी है, और नया हाई रहा बैंक अल-फलाह में भी, एमसीबी में भी बहुत करीब पहुंचा अपनी प्रोसीडिंग जो उसकी हाई थी उसके करीब करीब। मज़ीद हम अपसर्ज देखेंगे और हमारा जो आज स्पेशल प्रोग्राम था वो एंग्रो कॉरपोरेशन पर था, एंग्रो ग्रुप पर था बेसिकली। नंबर 2 जो नए खिलाड़ी हमने एंट्री लेते हुए देखे बाज़ार में पोस्ट पोल, यानी कि इलेक्शन के बाद 8 फरवरी के बाद अब तक की जो मजमूई कारकर्दगी है बाज़ार की, उस पर अगर हम देखें बात करें तो बहुत ज़रूरी है कि कौन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है और कौन वहाँ से विड्रॉ कर रहा है, ये उससे बाखबर रहना बहुत ज़रूरी है। तो अब तक का जो फिगर है पोस्ट इलेक्शन यानी कि 8 फरवरी से अब तक, यानी कि कल 29 फरवरी तक, उसमें हमने मेजर चेंज देखा। इस पूरी रैली में म्यूचुअल फंड्स ने कंट्रीब्यूट किया और म्यूचुअल फंड्स ने कंट्रीब्यूट किया। हालांकि पिछले साल जो बड़ी रैली देखी गई 100x की 40,000 से 67,000 पॉइंट्स का एक बड़ा जंप था, वहाँ पर म्यूचुअल फंड्स की कोई बड़ी कंट्रीब्यूशन नहीं थी, कोई माल बड़ा नहीं लिया। अब उन्होंने पोस्ट पोल जो उनका फिगर देखा गया इन्वेस्टमेंट का वो $33 लाख का है, नेट परचेजेस की हैं, इतनी मालियत के शेयर्स उन्होंने ख़रीदे हैं। और नंबर 1 जो सबसे बड़ा मेजर कंट्रीब्यूटर रहा वो फॉरनर था, जिसने कि $1,98,00,000 के मालियत के शेयर्स को ख़रीदा है। इसके सिवा तमाम बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं जिन्होंने पिछली रैली को फ्यूल किया, यानी कि जुलाई से दिसंबर तक की जो रैली है वो एक रैली है, उन्होंने जहाँ पर हमने फ्यूल किया वहाँ पर था इंश्योरेंस कंपनीज़ और अदर ऑर्गेनाइजेशंस ने। अब की बार यानी कि 8 फरवरी के बाद पोस्ट पोल जो फिगर है इन तमाम स्टेक होल्डर्स ने शेयर्स को बेचा है, यानी कि टॉप जो कंट्रीब्यूटर हैं इन टर्म्स ऑफ सेलिंग, जिन्होंने नेट सेल किया वो कंपनीज़ हैं। 8 फरवरी से 29 फरवरी का जो फिगर है $69 लाख के मालियत के शेयर्स को फरोख्त किया कंपनीज़ ने। दूसरे नंबर पर रहा इंडिविजुअल्स यानी कि पब्लिक ने तकरीबन $67 लाख की मालियत के शेयर्स को फ़रोख्त किया है इस पीरियड में। बैंक्स ने भी $29 लाख के मालियत के शेयर्स को फ़रोख्त किया, नई ख़रीदारी नहीं की। इसके साथ साथ ब्रोकर्स ने भी बेचा माल, $22 लाख के मालियत के शेयर्स को उन्होंने फ़रोख्त किया। अदर इंश्योरेंस कंपनीज़ $21 लाख के वर्थ ऑफ जो शेयर्स हैं उन्होंने उसको लिक्विडेट किया, जबकि अदर ऑर्गेनाइजेशन ने लगभग $20 लाख मालियत के शेयर्स को फ़रोख्त किया है। तो यूँ जो ये रैली है, अगरचे कि 100x अभी 67,000 पॉइंट से नीचे ट्रेड हो रहा है, 65,325 पॉइंट्स की सतह पर आज की क्लोजिंग है, बट जो अंडर द सरफेस ऑफ द मार्केट जो उसके पार्टिसिपेंट हैं वो चेंज हो गए हैं। नंबर 2 जो स्टॉक्स हैं वो भी चेंज हो गए हैं, जिस पर अभी हम बात कर रहे थे, खासतौर पर नंबर 1 एंग्रो ग्रुप। अपसाइड स्टिल अभी जो 100x का रुझान है वो 67,000 से चूँकि नीचे है, और ये वो लम्हा है जहाँ पर फोकस बजाय के 100x को किया जाए इंडिविजुअल स्टॉक्स सेक्टर्स पर फोकस ज़्यादा एक बेहतरीन स्ट्रेटजी हो सकती है। वीक ऑन वीक बेसिस पर 100x में इस पूरे आउटगोइंग वीक में तकरीबन 2,510 पॉइंट्स की रैली देखी गई या 4% का इजाफा हुआ। आज अगर हम डे टू डे बेसिस पर बात करें तो वॉल्यूम्स में ज़रूर कमी देखी गई, 20% की गिरावट रही। कल के मुकाबले में 42 करोड़ शेयर से ज़्यादा का काम हुआ। कल हमने तकरीबन 53 करोड़ शेयर्स का बाज़ार में काम होते देखा था, और जो मालियत है आज के 42 करोड़ शेयर्स की वो 17.1 अरब रुपए की रही। टोटल 348 स्टॉक्स में आज लेन देन हुआ, ख़रीदो फरोख्त हुई, 183 स्टॉक्स की कीमतों में इजाफा,
148 स्टॉक्स की कीमतों में आज कमी हुई और इसके साथ साथ 17 स्टॉक्स में इस्तेहकाम पाया गया। कोहिनूर स्पिनिंग मिल ने आज लीड किया बाज़ार को 7 करोड़ शेयर से ज़्यादा के काम के साथ, जबकि उसका लेटेस्ट जो टारगेट प्राइस या रेजिस्टेंस है वो 5 रुपये 77 पैसे की सतह पर है। के इलेक्ट्रिक ट्रीट कॉरपोरेशन बड़े दिनों के बाद हमें टॉप 5 वॉल्यूम लीडर्स में देखने को मिला। ट्रीट कॉरपोरेशन, वर्ल्ड कॉल और सीनर्जी, ये वो स्टॉक्स है जिन्होंने आज मेजर कंट्रीब्यूट किया इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स। मंडे को यानी कि 4 मार्च को एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी नए खबरों, नए शेयर्स और नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमें इजाज़त दीजिए। खुदा।